First of all, welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be on all of you. یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ اس وقت ایک بزنس پریزنٹیشن کو سننے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جس بزنس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب تک وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے. ویسے تو رؤف بھائی نے کافی حد تک سب کچھ آپ لوگوں کو بتا ہی دیا ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. جس بزنس کو اس وقت ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس ہے. پوری دنیا میں بہت تیزی سے بڑھتا ہوا بزنس. جہاں بزنس کی بات آتی ہے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ پوری دنیا میں صرف دو طرح کے بزنس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹریڈیشنل بزنس اور دوسرا ہوتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس, جسے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جس طرح رؤف بھائی نے بتایا کہ ٹریڈیشنل بزنس لوگ کیوں نہیں کر رہے آج کل. جو لوگ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن کیا وہ وجوہات ہیں کہ ینگسٹرز ٹریڈیشنل بزنس کی طرف نہیں آ رہے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں؟ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے, جو کہ آپ میں سے اس وقت کسی کے پاس نہیں ہوگی, اور جن کے پاس ہوگی تو ان کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہوگا کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر سکیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس جسے اس وقت ہم یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں یا ہزاروں کی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریڈیشنل بزنس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ٹریڈیشنل بزنس کو اسٹوڈنٹس اور جاب کرنے والے حضرات نہیں کر سکتے. سب سے چھوٹا ٹریڈیشنل بزنس یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی دکان کھول لیں. آپ نے 10-12 لاکھ روپے لگا کے اگر کوئی دکان کھولی تو اس پہ بھی آپ کو 13 سے 14 گھنٹے دینے ہیں. تو کس وقت آپ پڑھیں گے, کس وقت آپ جاب کریں گے اور کس وقت ٹریڈیشنل بزنس کریں گے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس اتنا خوبصورت بزنس ہے کہ اسٹوڈنٹس کالج سے آنے کے بعد, کوچنگ سے واپس آنے کے بعد, یا جاب کرنے والے حضرات جاب سے واپس آنے کے بعد جو ٹائم ٹی وی دیکھنے میں یا دوستوں کے ساتھ سگریٹ پینے میں دیتے ہیں, بس وہ 1-1.5 گھنٹہ اس بزنس کو دے دیں, آپ کا بزنس گرو کر جاتا ہے. ٹریڈیشنل بزنس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ بزنس بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کی رسپانسبلٹیز بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور فائنلی آپ کے پاس اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس اتنا خوبصورت بزنس ہے کہ یہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے آپ کی رسپانسبلٹیز کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور فائنلی ختم ہو جاتی ہیں, اور آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ جس بزنس کے لیے آج آپ کے دوستوں نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا ہے, پہلی بات یہ کہ وہ اس بزنس کو خود کر رہے ہیں. جس بزنس کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بزنس میں خود کر رہا ہوں. آپ کے دوستوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے 17 کروڑ کی آبادی سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ذرا ہینڈ ریز کیجئے گا. کتنے لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ How many people have been doing network marketing for a long time? تو سر آپ لوگوں کو تو بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا, یعنی آپ لوگوں نے پہلے کبھی نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کر رکھی. جو کام آپ نے پہلے کبھی نہیں کر رکھا اس کو آگے کرنا آسان ہوگا یا مشکل؟ مشکل ہو جائے گا. غلط کہہ رہے ہیں, بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ جس کام کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کام آپ جانتے ہیں, وہ کام آپ کرتے بھی ہیں, اس کام کا ایکسپیرینس آپ کو اتنا ہی ہے جتنا مجھ کو. تو کوئی نیا کام آپ کو بتانے نہیں جا رہا ہوں, ایک لائیو ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کو سننے کے بعد آپ بتائیے گا کہ آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. عتیق بھائی یہاں موجود ہیں, میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور ماشاءاللہ اس بزنس سے بہت ہی اچھا ارن کر رہے ہیں. عتیق بھائی ابھی میں آ رہا تھا تو میرا موبائل فون گر گیا, تو کوئی اچھا موبائل فون مجھے ریفر کریں جو آپ خود یوز کر رہے ہوں. N73 آپ یوز کر رہے ہیں. اچھا, اس کا بیٹری ٹائم کیسا ہے؟ آپ کو پتا ہے میری کالز بہت آنی ہوتی ہیں. کیمرہ ہے اس میں کتنا؟ 3 میگا پکسل کیمرہ ہے. اچھی بات ہے. کہاں سے؟ میری رہائش آپ کو پتا ہے گلشن اقبال میں ہے, اور سخی حسن آفس میں مجھے آنا ہوتا ہے, تو سرینا سے مل جائے گا. کوئی شاپ بتا دیں مجھے.
यूनाइटेड मोबाइल से। अब मैं सेरीना पे जाके यूनाइटेड मोबाइल से N73 मोबाइल फ़ोन ख़रीद लेता हूँ, तो ये मोबाइल फ़ोन किसकी वजह से बिका? N73 का ऐड भी अब टीवी पे नहीं चलता, इसके बैनर्स भी अब नहीं लगते, मैगजीन्स में भी अब इसके ऐड नहीं आते, तो फिर जाके मैंने N73 कैसे खरीद लिया? किसकी वजह से खरीद लिया? अतीक भाई की वजह से, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की, सेरीना मार्केट की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की यूनाइटेड मोबाइल की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की नोकिया की, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की N73 की, और ये मोबाइल फोन बिका और वहीं से बिका। सिंपली दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अतीक भाई, आपने तो मुझे मेरी जरूरत की चीज दिला दी, मोबाइल फोन, जिसकी उस वक्त मुझे जरूरत थी। इसके साथ साथ आपने यूनाइटेड मोबाइल वालों को भी तो उनके मतलब की चीज दे दी, कस्टमर। बदले में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बस ये गलतियां आप लोग करते हैं, जिसमें मुझे बहुत दुख होता है। आज के बाद भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिएगा, लेकिन ये गलती ना कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों को उनके मतलब की, उनके जरूरत की चीज दे रहे हैं, कंपनी को उसकी जरूरत की चीज दे रहे हैं, और बदले में अपनी जरूरत की चीज नहीं दे रहे हैं। सेम यही काम मैं भी करता हूं, सेम यही काम आपके दोस्त भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतना कमा रहे हैं कि हमारी जिंदगी से ये काश का लफ्ज खत्म होता जा रहा है कि काश गाड़ी होती, काश घर होता, काश अच्छा मोबाइल फोन होता, काश बहुत रिस्पेक्ट होती। ये काश का लफ्ज जिंदगी से खत्म होता जा रहा है। तो जिस कंपनी की नेटवर्क मार्केटिंग आपने करनी है जानते बूझते, उसका नाम है GMI, गोल्ड माइन इंटरनेशनल। इसका वेबसाइट एड्रेस है www.goldmineint.com। ये नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, और नॉर्वे में ये कंपनी रजिस्टर्ड है और लीगल बिजनेस कर रही है। इसलिए अगर मेरी कोई एक बात भी आपको गलत लगे तो आप अपने तौर पे इस कंपनी की डिटेल्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी है तो आप खुद से भी इसकी तमाम डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई फरवरी 2000 में। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे इस कंपनी को ज्वाइन करने की वजह ये फरवरी 2000 का वर्ड है, क्योंकि कंपनीज बहुत हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हजारों या लाखों में हैं दुनिया में, लेकिन ये जरूरी है कि किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाए कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी कितनी रिलायबल है। और किसी भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला कॉमर्स ने हमें दे दिया, जो एमकॉम और एमबीए की बुक्स में हमें मिल जाता है। वो ये है कि अगर किसी भी कंपनी को स्मूथली काम करते हुए विद वन बिजनेस प्लान, विद वन बिजनेस टीम 2 साल का अरसा गुजर गया है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कंपनी को 2 साल से कम हुए हैं, या कोई भी कंपनी बार बार अपने प्लान्स एंड प्रोसीजर्स चेंज कर रही है, अपनी टीम चेंज कर रही है, आज चाइनीज के पास, कल पाकिस्तानीज के पास, उसके बाद थाईलैंड शिफ्ट, उसके बाद मलेशिया शिफ्ट, ऐसी कंपनी ट्रस्टवर्दी नहीं होती। गोल्ड माइन इंटरनेशनल, जिसकी आज हम यहां बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो विद वन बिजनेस प्लान, विद वन बिजनेस टीम 2 साल नहीं बल्कि 9 साल से स्मूथली काम कर रही है। इसलिए मेरा और आपके दोस्तों का ट्रस्ट इस कंपनी पे 100% है। ये कंपनी काम क्या करती है? ये कंपनी गोल्ड के प्रोडक्ट्स बनाती है, और इनके प्रोडक्ट्स की कीमत $300 से स्टार्ट होती है और $3000 तक जाती है। एक $60 की इनकी 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ब्रांडेड वॉच भी है। ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में बिकते रहते हैं, लोग मंगवाते रहते हैं, पहनते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। The question arises here, why should we join this company? Why the people are getting impatient to join this company? Reason है,
हम इस कंपनी से मेहनत करके कमाते हैं $450 एक दिन के। एक बार फिर से कह देता हूं ये सेंटेंस, हम इस कंपनी से मेहनत करके कमाते हैं $450 एक दिन के। ये बात ज़हन में रखिएगा कि मेहनत करके $450 इस कंपनी से लोग कमा रहे हैं। बगैर मेहनत के आप इस कंपनी से $1 भी नहीं कमा सकते। तो अगर कोई इस माइंड के साथ यहाँ बैठा है तो वो ये सुन के दुखी हो जाए कि बगैर मेहनत के आप इस कंपनी से कुछ नहीं कमा सकते। बहुत मेहनत है जो मैंने की, मेरे दोस्तों ने की और आपके दोस्त कर रहे हैं तो इतना अर्न कर रहे हैं। ये $450 एक दिन के यानी 36,000 रुपए एक दिन के बनते हैं। 11 लाख रुपए महीना। अगर 11 लाख रुपए महीना आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाने की बात करें तो 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी होगी। 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास 11 करोड़ रखे थे और आपने इन्वेस्ट कर दिए। 10 से 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी और रिस्क ले लिया। 10-11 करोड़ पूरे करने में ही आपको 10 से 11 साल लग जाएंगे। उसके बाद आप फिर कुछ कमाना शुरू करेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। अब मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं कि लोग क्यों इस कंपनी को बहुत ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, लोग क्यों इस कंपनी को ज्वाइन करके कमा रहे हैं। वजह यह है कि आपका बिजनेस 11 करोड़ से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ $60 से स्टार्ट होता है। पूरी जिंदगी में जो अमाउंट आपने कंपनी को देना है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ $60 है। जैसे ही ये $60 आप कंपनी के अकाउंट में भेजते हैं, कंपनी इंटरनेट पे आपको आपका एक पर्सनल ऑफिस प्रोवाइड कर देती है। ऑफिस की चाबी सिर्फ आपके पास होती है, जो है पासवर्ड। आपने पासवर्ड डाला, आपका ऑफिस खुल गया। ऑफिस में काम क्या करना है? काम वही करना है जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। काम वही करना है जो आज भी आपने किया होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक आप अनजाने में इस काम को कर रहे थे, इसलिए बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा था। आज के बाद यही काम आप जानते बूझते करेंगे इस कंपनी के लिए और अपने दोस्तों की तरह, मेरी तरह बहुत कुछ कमा लेंगे। काम बताने से पहले, कंपनी का प्लान बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। आप सोच रहे होंगे ये $60 जो पूरी जिंदगी में एक दफा आपने देने हैं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या कोई मेंबरशिप फीस है या रजिस्ट्रेशन फीस है या लॉगिन फीस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन के खुश हो जाइए कि ये $60 जो जिंदगी में एक दफा आपने देने हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट या मेंबरशिप फीस नहीं है। ये $60 आपने अपनी प्रोडक्ट को खरीदने के दिए। $60 दे के चाहे तो आप कोई $300, $400, $500 या $3000 वाला प्रोडक्ट बुक कर लें। इनके तमाम प्रोडक्ट्स गोल्ड के हैं और वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। $60 दे के आप चाहें तो कोई प्रोडक्ट बुक कर दें और $60 हो गई आपकी पार्शियल पेमेंट किसी भी गोल्ड प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई चाहता है कि इंस्टेंटली इसको कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो वो $60 दे के ये 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ब्रांडेड वॉच कंपनी से खरीद सकता है। घड़ी लेने के लिए $10 डिलीवरी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं और आपके घर पे आपके हाथ में घड़ी आ जाती है। $60 दे के आप चाहें तो कोई प्रोडक्ट बुक कर लें या $60 दे के आप फौरन ये 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड वॉच कंपनी से खरीद लें। दोनों सूरतों में से कोई एक काम भी आप करते हैं तो आपको इंटरनेट पे वर्किंग करने के लिए ऑफिस मिल जाता है। कंपनी ने एक प्लान आपको दिया है, उस प्लान पे आप वर्किंग करेंगे तो आपका कमीशन आपके दोस्तों की तरह स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी का प्लान है 3 लेफ्ट 3 राइट पे कंपनी आपको पे करती है पूरे $30, 2500 रुपए।
یہ 3 لیفٹ 3 رائٹ کیا چیز ہے؟ آپ نے $60 دیے، آپ نے کمپنی کو جوائن کیا، آپ کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ ملی، آپ کو یہ بزنس اچھا لگا اس لیے آپ نے جوائن کیا. برا لگے گا تو کوئی جوائن نہیں کرے گا. جب ایک چیز اچھی لگتی ہے تو انسان اس کو آگے شیئر کرتا ہے. ہیومن نیچر کے مطابق آپ نے آگے اپنے 2 دوستوں کو یہ بزنس بتایا اس نیت سے کہ وہ بھی کما لیں. انہوں نے بھی $60 دیے اپنی پروڈکٹ کے لیے اور ان کو بھی ایک آفس انٹرنیٹ پہ واکنگ کرنے کے لیے مل گیا. اے صاحب نے اپنے لیفٹ اور رائٹ پہ ایک شخص کو ایڈ کیا. اسی طرح بی صاحب نے بھی اپنا 1 لیفٹ 1 رائٹ کمپلیٹ کیا. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ 3. اور رائٹ سائڈ پہ کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ 3. 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ کمپنی آپ کو پورے $30 کا کمیشن دے دیتی ہے. یہ کمپنی کا پلان ہے. جب تک آپ کمپنی میں کام کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، آپ کو 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ $30 ملتا رہے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ محنت نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ آپ کو $30 مل رہا ہوگا جیسے مجھے مل رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ اب تک آپ نے سوچ بھی لیا ہوگا کہ وہ کون سے 6 لوگ ہیں جن کی ہیلپ آپ نے بزنس میں کرنی ہے. لیکن کمپنی آپ کو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں سمجھتی. کمپنی آپ کو اس بزنس میں بگنر سمجھتی ہے اور بگنر سمجھتے ہوئے تمام لوگوں سے کمپنی کہتی ہے کہ فرسٹ سٹیپ میں 3 لیفٹ 3 رائٹ نہیں بلکہ صرف اور صرف 1 لیفٹ اور 1 رائٹ ہی کر کے دکھا دیں، ہم اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 2 سائڈز ہیں، لیفٹ اور رائٹ. کوئی تیسری سائڈ آپ کے پاس نہیں ہے. 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ کمپنی آپ کو $30 پے کر رہی ہے. 1 لیفٹ 1 رائٹ پہ کمپنی کو آپ کو کتنا پے کرنا چاہیے؟ $10 پے کرنا چاہیے. کمپنی آپ کو 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پہ پورے $10 کا کمیشن دے دیتی ہے. ٹھیک ہے؟ 30 لکھ دیا کیونکہ کمپنی 1 لیفٹ اور 1 رائٹ پہ پورے $30 کا کمیشن آپ کو دے دیتی ہے. This is the most beautiful step which I liked in this company and I took only 1 minute having decided that I will join this company. 1 لیفٹ 1 رائٹ پہ کمپنی نے آپ کو $30 دیا اور اس اسٹیپ کا نام کمپنی نے رکھا ہے GMS گولڈ موٹیویشن اسٹیپ. آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ آگے اور بہتر کام کریں. اے صاحب نے کمپنی کو کیوں جوائن کیا یا بی صاحب نے کمپنی کو کیوں جوائن کیا؟ میرے لیے، آپ کے لیے یا کمانے کے لیے؟ کمانے کے لیے. ہر شخص اس کمپنی کو جوائن کرتا ہے کمانے کے لیے. کوئی بھی کسی کی وجہ سے نہیں کرتا. نہ میں نے کسی کی وجہ سے کیا. میں نے اپنی فیملی کو فائنینشیل کرائسس سے باہر نکالنے کے لیے اس کمپنی کو جوائن کیا. اسی طرح جب اے صاحب نے کمانے کے لیے جوائن کیا ہے، ان کو بھی ورکنگ کرنے کے لیے لیفٹ اور رائٹ سائڈ ملی ہے. انہوں نے اپنے لیفٹ پہ ایک کو ایڈ کیا، رائٹ پہ ایک کو ایڈ کیا. 1 لیفٹ 1 رائٹ پہ اے صاحب کو کمپنی $30 دے دے گی کیونکہ تمام لوگوں کو فرسٹ سٹیپ میں 1 پہ ہی 30 مل جاتا ہے. اس کے بعد 3 لیفٹ 3 رائٹ پہ 30 ملے گا. اسی طرح بی صاحب نے ایک شخص کو لیفٹ پہ ایڈ کیا، ایک کو رائٹ پہ ایڈ کیا. 1 لیفٹ 1 رائٹ پہ کمپنی بی صاحب کو بھی $30 کا کمیشن دے دیتی. آپ کس کو لائے تھے؟ اے اور بی کو. اس کا کمیشن آپ کو مل گیا یا نہیں ملا؟ مل گیا. یہ رہا. اگر آپ غور کریں، یہ آپ کی سینٹرل لائن ہے. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کتنے نئے لوگ آ گئے؟ لیفٹ سائڈ پہ کتنے نئے لوگ آ گئے؟ 2. اور رائٹ سائڈ پہ 2. 2 لیفٹ 2 رائٹ نئے لوگ اس وقت ہمارے ٹری میں موجود ہیں. اس پہ ہمیں کمیشن ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے. آدھے کہہ رہے ہیں ملنا چاہیے. یہ تو اے اور بی لے کر آئے ہیں، ان کو ہم تو نہیں لائے.
तो फिर हमें क्यों मिलना चाहिए? ए और बी को तो हम लेकर आए, अगर ए और बी को हम ना लाते तो क्या ये 4 नए कस्टमर्स कंपनी को मिल जाते? कभी भी नहीं मिलते। इसलिए इस पे भी हमें कमीशन मिलेगा। हम नहीं लाए लेकिन इनडायरेक्टली हमारी वजह से ही आए हैं, इसलिए इस पे भी हमें कमीशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा रुक के, क्योंकि कंपनी का प्लान क्या है? 3 लेफ्ट 3 राइट। ये अपनी राइट साइड पे एक एंट्री करते हैं, ये अपने लेफ्ट साइड पे एक एंट्री करते हैं। आपके लेफ्ट साइड पे नए लोग कितने आ गए? सेंटर लाइन देख के बताइएगा। 3। और आपके राइट साइड पे नए लोग कितने आ गए? 3। 3 लेफ्ट 3 राइट पे कंपनी आपको कितना कमीशन दे देगी? $30। ये शख्स आपके किस साइड पे होगा? लेफ्ट साइड। ये एक दोस्त को लाए, ये आगे 2 दोस्तों को लाए, 3 लोग नए आपके लेफ्ट साइड पे आ गए, लेकिन आपका कमीशन नहीं आया। वजह? राइट साइड पे आपके ग्रोथ नहीं हुई। ये एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, और ये तीसरे को। इस तरह अगर आप देखें तो 3 लेफ्ट 3 राइट का सेट कंप्लीट हुआ और एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो गया। ऐसे में ये एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, ये तीसरे को, ये 3 यहां से सिलेक्ट हुए, ये एक को लाए, दूसरे को, तीसरे को, 3 वहां से सिलेक्ट हुए, एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो गया और यहाँ पे एक रिमेनिंग रह गया। ये ज़ाया नहीं हुआ, ये आपकी अनपेड सेल है। ये एक दोस्त को, दूसरे को, तीसरे को लाए, ये एक दोस्त को, दूसरे को, तीसरे को, 3 लेफ्ट 3 राइट कंप्लीट हुआ और एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो जाएगा। जहां इस बिजनेस में एक अच्छी बात यह है कि 1 लेफ्ट 1 राइट पे पूरे $30 का कमीशन आपको हो जाता है। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि कमीशन आपको मंथली नहीं बल्कि वीकली मिलता है। जितनी मेहनत आपने की होती है उसका रिवॉर्ड आपको मंडे को मिल जाता है। मंडे आया, ये पहला कमीशन आपने कैश कर लिया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ये 4 कमीशन आपने कैश कर लिए। $120, $10,000 बने। अब चाहे एक दिन में आपने किया ये काम, एक हफ्ते में किया, एक घंटे में किया या एक महीने में किया, ये $120 आपने कैश किए। कैश कैसे होंगे ये मैं एंड में आपको बता दूंगा। जेब में रखा और घर ले गए। ये जो 5वां कमीशन है, 5th वन, ये भी आप ही का होता है, लेकिन आप इसे कैश नहीं कर सकते। आप ही के ऑफिस में एक जगह लिखा होगा गोल्ड वाउचर्स बैंक, ये 5वां कमीशन जाके वहां जमा हो जाता है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां आपने कैश कर लिया, 10वां यहाँ जमा हो गया, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां आपने कैश कर लिया, 15वां यहाँ जमा हो गया। और 4 कमीशन आप कैश करते रहेंगे, 5वां यहाँ जमा होता रहेगा कट के, और जमा होते होते जब ये $300 ये इससे प्लस हो जाए तो इसकी आप लेते हैं कंपनी से कोई बड़ी प्रोडक्ट, $300 वाली, $400 वाली, $500 वाली, जितना ये बढ़ने दें आप उस लिहाज से अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। शुरू में अगर मेरी तरह आपने $60 दे के ये वॉच ले ली तो आपके $60 पूरे हो गए। लेकिन अगर आपने $60 दिए थे और वॉच नहीं ली थी और कोई बड़ी प्रोडक्ट बुक की थी तो वो $60 यहाँ जीवीज के साथ जमा हो जाते हैं। अगर $60 दे के आप वॉच ले लेते हैं तो यहाँ पे कोई अमाउंट एक्स्ट्रा नहीं है, जो जीवीज जमा हो रहे हैं वही है। लेकिन अगर आपने शुरू में घड़ी नहीं ली तो वो $60 भी जीवीज के साथ ही ऐड हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होता है? सेकेंड स्टेप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप, फिर प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी। अक्सर लोग इस बिजनेस में कंफ्यूज होते हैं कि शायद बहुत ही टिपिकल बिजनेस है, डिफिकल्ट बिजनेस है। टिपिकल और डिफिकल्ट होता तो फिर आपके दोस्त नहीं कर रहे होते। आपके दोस्त भी तो आप ही की तरह हैं। जब वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, जब मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, जब लाखों लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये तो अपनी विल होती है
ये तो अपनी सोच होती है जो हमें नाकाम या कामयाब बनाती है। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो वो फिर वाकई ही कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सही सोचते हैं, वाकई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच है जो हमें कामयाब या नाकाम बनाती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये बिजनेस है क्या? बिजनेस बहुत सिंपल है। हम अपने दोस्तों को उनकी ज़रूरत की चीज़ दे रहे हैं। बिजनेस कंपनी को उनके मतलब की, उनकी ज़रूरत की चीज़ दे रहे हैं कस्टमर। उसके बदले में हमें हमारी ज़रूरत की, मतलब की चीज़ मिल रही है कमीशन। बहुत सिंपल सा बिजनेस है, लेकिन अगर इसको भी कोई डिफिकल्ट बनाना चाहता है, इसको भी कोई इंट्रिकेट करना चाहता है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि उन्होंने दो लोगों को इस बिजनेस में हेल्प किया, एडप्ट किया, ए और बी को। ए जितना भी काम करेगा, आपकी कौन सी साइड बढ़ेगी? लेफ्ट साइड। ये सेंटर लाइन देख के मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे आखिर में आपसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो मुझे आप बताते रहें कि आप कितना इन्वॉल्व है मेरे साथ। ए जितना भी काम करेगा, आपकी कौन सी साइड बढ़ेगी? लेफ्ट साइड। बी जितना भी काम करेगा, आपकी कौन सी साइड बढ़ेगी? राइट साइड। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए काम करे, बी ना करे, या बी काम करे, ए ना करे। मान ले ऐसा ही हो गया। ए आगे अपने दो दोस्तों को लाया, इसने प्रेजेंटेशन दिलवाई, बी नहीं, अपने सीनियर से प्रेजेंटेशन दिलवाई, और इन दोनों ने एडप्ट किया। इसी तरह ये अपने एक दोस्त को लाए, इन्होंने आगे अपने दो दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवा के ऐड किया, इन्होंने आगे अपने दो दोस्तों को ऐड किया। इस तरह ये एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को लाए, ये आगे अपने दो दोस्तों को लाए। इस तरह यहाँ पे प्रेजेंटेशंस हर कोई दिलवा रहा है और एडिशन होता चला जा रहा है। इतने अरसे में ए साहब भी प्रेजेंटेशन देना सीख गए और अब ये खुद भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक वक्त ये आया कि बढ़ते बढ़ते ए के लेफ्ट साइड पे 35 लोग हो गए और राइट साइड पे 40 हो गए। 35 जब मैच हुआ तो ए साहब ने कमा लिए $350। ए का सबसे पहले फोन आपके पास जाएगा, क्योंकि आपने ए को ये बिजनेस बताया था। जब मेरा पहला कमीशन आया था तो सबसे पहले मैंने आबिद भाई और कामरान भाई को कॉल की थी कि आई हैव अर्न $30, और मैं इतना खुश था, और मेरी अम्मी ने फोन छीन लिया था और वो कामरान भाई को दुआएं दे रही थी इस वक्त, क्योंकि जिन फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं था, शायद आप में से इस वक्त कोई भी ना हो। ए के लेफ्ट साइड पे 35, राइट पे 40 हुए। आपने $350, ए साहब ने $350 कमा लिए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ए साहब ने आपको बहुत दुआएं दी, लेकिन दुआओं के साथ आपने कमाया कितना? ए ने जितना भी काम किया, एक बार जरा फिर से बता दीजिएगा, ए ने जितना भी काम किया, आपकी कौन सी साइड बढ़ी? लेफ्ट साइड। 35 और 40, 75 एक ये खुद। 76 people are at your left side. How many people are at your right side? सिर्फ 1. आपने कितना कमाया होगा? 1 right, 1 left पे कितना कमाया होगा? सिर्फ और सिर्फ $30। ये बाद में आया, इसने आपसे कहीं ज्यादा कमा लिया। आप पहले आए, लेकिन आपने ए से कम कमाया। आपके दोस्त जो आपको यहाँ लाए हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे ज्यादा मेहनत करें तो आप उनसे ज्यादा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में कामयाब वही है जो मेहनत करना जानता है। जो मेहनत से जी चुराता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं है। हमारा बिजनेस रुका तो किसकी वजह से रुका? आगे ग्रोथ नहीं हुई तो किसकी वजह से? बी की वजह से। ऐसा नहीं है, अगर बी रुक गया और फिर भी हम आगे काम नहीं कर रहे तो हमारी वजह से ही काम रुक रहा है, क्योंकि ये बिजनेस किसी भी सूरत में नहीं रुकता। अगर बी आगे वर्किंग नहीं कर रहा तो आप बी से पूछे बिना ऊपर से डायरेक्ट एक तीसरे दोस्त सी को यहाँ ऐड कर दें, प्रेजेंटेशन दिलवा के।
जैसे ही आप सी को यहाँ ऐड करेंगे आपका काउंटर 2 हो जाएगा। सी आगे अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवाता है और आपका काउंटर 4 हो जाता है। ए और बी का कमीशन आपको मिल चुका था। 3 नए लोग आपके राइट पे आए, वो मैच हो जाते हैं इन 3 के साथ, क्योंकि इधर तो सारे लोग बाकी अनपेड। ये 3 यहाँ इन 3 के साथ मैच होता है और आपको एक बार फिर से $30 का कमीशन हो जाता है। अब आपका बिजनेस नहीं रुकता, जहां रुक सकता था मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया, और किस तरह से उस सिचुएशन को कोप अप करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये आगे अपने एक दोस्त को लाए, ये दूसरे को, आगे ये अपने 2 दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं, अपना लेफ्ट राइट कंप्लीट करते हैं। इस तरह ये एक दोस्त को लाए, दूसरे को, इस तरह यहाँ पे समहाउ प्रेजेंटेशंस लोग दिलवा के ग्रोथ कर रहे होंगे, और आपको 3 लेफ्ट 3 राइट पे जितने भी रुके हुए कमीशन हैं वो मिलते चले जाएंगे। एक वक्त आएगा कि यहाँ बढ़ते बढ़ते 76 हो जाएंगे, और 76 पे आप कमा चुके होंगे $760। लेकिन आप क्या समझते हैं, जब तक आप यहाँ 76 करेंगे राइट पे, लेफ्ट पे क्या 76 ही होंगे? ये इंतजार कर रहे होंगे कि आप राइट पे 76 कर लें, उसके बाद ये आगे वर्किंग शुरू करेंगे। यहाँ जितने लोग हैं किसकी वजह से आए थे? अपनी वजह से या आपकी वजह से? अपनी वजह से। जब ये अपनी वजह से, अपनी फैमिली की वजह से आए थे, तो ये किसी का इंतजार नहीं करेंगे, हर कोई आगे अपनी वर्किंग कर रहा होता है। जब ये आगे अपनी वर्किंग कर रहे होंगे, तो जब तक आप यहाँ 76 करेंगे ये 760 हो चुके होंगे। ऐसे में एक दोस्त को ये लाए, 2 को ये लाए, ये 3 से मैच होता है, एक बार फिर से आपको $30 का कमीशन हो जाता है। इस तरह एक साइड आपकी अक्सर तेज चल रही होती है, एक तरह स्लो चल रही होती है, लेकिन कमीशन आपको आ रहा होता है। आपका बिजनेस किसी सूरत में नहीं रुकता, और अगर आप ही नहीं चाह रहे तो फिर तो बिजनेस शुरू भी नहीं हो सकता, रुकने की बात तो दूर की है। आखिरी स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं, उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। सपोज करें कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप 1 साल काम ना करें, 6 महीने काम ना करें, 2 साल काम ना करें, 5 साल काम ना करें, आपका ऑफिस एक्सपायर नहीं होता। लेकिन दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया, 15 लाख रुपए लगा के एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की, और खुदा ना खास्ता 6 महीने तक आप दुकान नहीं जा सके, आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आप बिस्तर पे हैं। 6 महीने तक आप दुकान नहीं गए, जब 6 महीने बाद दुकान जाएंगे तो क्या होगा? दुकान का, दुकान बंद हो चुकी होगी। ना सिर्फ दुकान बंद हो चुकी होगी, बल्कि 6 महीने तक बिस्तर पे लेटे लेटे आपको दुकान का बिजली का बिल देना पड़ा, टेलीफोन का बिल देना पड़ा, जगह का किराया देना पड़ा, जो सेल्समैन आपने रखा उसके पैसे आपने देने पड़े, तो बिस्तर पे लेटे लेटे आपका बैंकरप्ट हो गया। यहां पे देखते हैं, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 6 महीने तक आप वर्किंग नहीं कर सके। 6 महीने बाद जब आप अपना ऑफिस खोलेंगे पासवर्ड डाल के, तो कितना बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, कितना टेलीफोन का बिल देना पड़ेगा, कितना जगह का किराया देना पड़ेगा, कितने सेल्समैन आपने रखे थे अपने ऑफिस में कि उनको आपको पैसे देना पड़ेगा। ना ही आपका ऑफिस बंद होगा, ना कोई पैसा आपने इस $60 के बाद अपनी जेब से देना है। इसलिए इस बिजनेस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मैं ऑफिस में था परसों, तो एक साहब को मैंने चैलेंज किया, उस वक्त तकरीबन 500-600 लोग ऑफिस में मौजूद थे, बल्कि में हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है। तो मैंने उन साहब को एक चैलेंज किया कि आप यहाँ खड़े हो और मुझे एक चेहरा ऐसा दिखा दें जो यहाँ उदास हो। उन्होंने देखना शुरू किया और तमाम लोगों को देखने के बाद कहने लगे कि यहाँ तो सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने कहा कि अब बाहर जाइए गेट से और मुझे ढूंढ के ला के बताएं कि कोई ऐसा शख्स जो परेशान हो। वो बाहर गए तो कहने लगे यार यहाँ से तो मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है तो परेशान है, गाड़ी में कोई बैठा है तो परेशान है। मैंने कहा बस यही पावर है जीएमआई की कि जब कोई आ जाता है तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, वो मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है।
آپ کو کرتا ہوں کہ آپ کے جو جتنے دوست GMI میں سائن اپ ہیں, جتنے لوگ یہاں سائن اپ بیٹھے ہیں, وہ ایک چہرہ میرے پاس لے آئیں جو اداس ہو. نہیں لا سکتے آپ. آخری اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے پاس پوری کریں, آپ کام کریں, لیکن میں آپ کو پوری زندگی نہیں دے رہا. GMI میں سب کما رہے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو نہ کمائے. Then I will feel guilty. And I don't have a guilty conscience. That's why میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی کمائے. اس طرح ہر کوئی کما رہا ہے, آپ لوگ بھی کمائیں. اس لیے میں آپ کو پوری زندگی نہیں دے رہا, میں آپ کو صرف اور صرف 1 month دیتا ہوں. یہ کوئی کمپنی کی پالیسی نہیں ہے, میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو 30 days دیتا ہوں. میں آپ کو ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں چھوٹا سا. اس ٹیسٹ میں جو کلیئر کرے گا, یہ بزنس اس کے لیے ہے. اینڈ جو اس ٹیسٹ کو کلیئر نہیں کرتا تو پھر وہ خود ہی مان لے کہ ابھی مجھے اس بزنس کو نہیں کرنا. ابھی پہلے میں اپنے دوستوں کو ان کی ہونڈا سیوک آتے ہوئے دیکھ لوں, ان کا گھر بنتے ہوئے دیکھ لوں, ان کا اچھا موبائل فون آتے ہوئے دیکھ لوں, ان کی زندگی بدلتے ہوئے دیکھ لوں, اس کے بعد پھر جوائن کروں گا. یہ شاید اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہو. تو 1 month میں آپ کو دیتا ہوں, 30 days. پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ کتنے لوگوں کی آپ ہیلپ کرنا چاہیں گے؟ کتنا بڑا دل ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کماتا ہوا دیکھ لیں؟ یہ بزنس علم کی طرح ہے. جس طرح علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, یہ بزنس بھی بانٹنے سے بڑھتا ہے. تو دیکھیں کہ علم کی طرح کی چیز ہے تو کتنی خوبصورت ہو گئی. تو بس میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ 30 days آپ کے پاس ہیں. 1 مہینے میں, پوری زندگی میں صرف 30 دن میں ورکنگ کریں. 30 دن بعد کسی کو مت چاہیے گا. کتنے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیں گے؟ کتنا بڑا دل ہے آپ کے پاس؟ ادھر حضرات کوئی فکر دینا چاہیں گے؟ 100. تو میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں GMI میں جنہوں نے 1 مہینے میں 100, 150, 200, 50, 70 انٹریز کی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر شخص 20 to 100 انٹریز 1 مہینے میں کر دیتا ہے. جس کی بالکل ہی جان پہچان نہ ہو, وہ بھی منیمم 10 لوگوں کو آسانی سے اس بزنس میں ایڈ اپ کر دیتا ہے. کیونکہ آپ ایک گولڈن اپورچونٹی جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. کہتے ہیں سم پیپل آر وائس اینڈ سم پیپل آر ادر وائس. تو ہمیں ادر وائس میں نہیں, وائس میں شامل ہونا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 سے 100 لوگوں کی بات کریں تو آپ آسانی سے 1 مہینے میں لا سکتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کروں گا, 10 سے 100 لوگوں کو مت لائیے گا. جو فگر میں یہاں لکھ رہا ہوں, اگر اتنا آپ کر سکتے ہیں تو بس اس بزنس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور اتنا ہی کر لیجئے گا. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ابھی رک جائیں, ابھی تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا ہوگا. اگر آپ اپنی پوری زندگی میں صرف اتنا کر سکتے ہیں, then success will kiss your feet. But if even you can't bring 2 people in this business, then you will have to just stop right now. You can take your time. صرف 2 لوگوں کو اس بزنس میں آپ نے پریزنٹیشن دینی نہیں ہے بلکہ دلوانی ہے. پراپرلی کام سکھانا ہے. 2 ہاتھ ہیں تو 2 ہی لوگوں کو لے آئے تاکہ 2 کا ہاتھ پکڑ کے چل سکے. 2 لوگوں کو جب آپ نے پریزنٹیشن دے کے ایڈ کیا تو ان سے پوچھا کہ 1 مہینے میں آپ کتنے لوگوں کو ایڈ کر دیں گے؟ انہوں نے بھی کہا 10 سے 100 لوگوں کو. آپ کہیں بھائی صرف 2 لوگوں کو اس بزنس میں ایڈ کر دیں, وہ بھی پریزنٹیشن دلوا کے. انہوں نے پورا مہینہ لیا, ایک صاحب نے, اور 2 لوگوں کو ایڈ کیا. انہوں نے پورا مہینہ لیا اور 2 لوگوں کو ایڈ کیا. اس طرح سیکنڈ منتھ میں 4 نئے لوگ آپ کے ڈاؤن لائن میں آ جاتے ہیں. ان 4 میں اوپر والے 2 شامل ہیں. فرسٹ منتھ کے یہ رہے, سیکنڈ منتھ کے یہ رہے. ان 4 میں اوپر والے 2 شامل ہیں؟ نہیں ہے شامل. 1, 2, 3, 4. سیکنڈ منتھ میں 4 نئے آئے. فرسٹ منتھ میں کتنے ہیں؟ 1, 2. ان کو پلس کر دیں تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 6 ہو جائیں گے. تھرڈ منتھ میں جب تھرڈ منتھ آیا تو ان کا تو فرسٹ منتھ ہے. ان سے کہا آپ 1 مہینے میں کتنے لے آئیں گے؟ چاروں مختلف لوگ ہیں, ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے بھی کہا 10 سے 100. آپ ریکویسٹ کر لیں میری طرح ان سے کہ صرف 2. اس طرح تھرڈ منتھ میں نئے کتنے لوگ آپ کے ڈاؤن لائن میں آ جائیں گے؟
8 नए लोग आपके डाउनलाइन में आ गए। इन 8 में ऊपर वाले 4 और 2 शामिल हैं? शामिल नहीं है। अगर ये देखें आप, 8 लोग ये अलग, 4 लोग ये अलग, 2 लोग ये अलग। अगर इन 8 में ऊपर वाले भी शामिल कर लें तो टोटल 14 लोग आपके डाउनलाइन में आ जाते हैं। इस तरह अगर आपका ट्री ग्रो करे तो 4th मंथ में कितने नए लोग आपके डाउनलाइन में आ जाएंगे जब ये आगे 2-2 लाएंगे? 16। 5th मंथ में बताएंगे सर कितने आ जाएंगे? 32। 6th मंथ में 64। 7th मंथ में 128। 8th मंथ में 256। 9th month में 512, then 1024, 2048, and finally 4096. Then 11 and 12. 12th month में आपके डाउनलाइन में जो नए लोग आएंगे वो होंगे 4096, जिन्हें आप कंप्यूटर पे देख सकते होंगे। आपको एक एक चीज इसी तरह कंप्यूटर पे नजर आ रही होगी, लेकिन शायद आप उन्हें जानते ना हो। मैंने इस बिजनेस में बहुत कम लोगों को ऐड किया। टोटल 9 लोगों को मैंने इस बिजनेस में एडअप किया जिन्हें मैं जानता हूँ। उसके बाद आगे उन्होंने 9-10 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह आगे उन्होंने 2-3 को ऐड किया जिन्हें वो जानते हैं। इस तरह हर कोई 2-4 लोगों को जानता होता है अपने नीचे वाले, और आपका ट्री पूरा ग्रो करता चला जाता है। एक साल में जो वर्किंग आपने की, 12th मंथ में नए लोग कितने आए? 4096। अगर आप ऊपर वाले भी इसमें शामिल कर लें तो 4096 प्लस 2048, 6000 कुछ ये हो गए, 7000, 7500, 8500, ऊपर से लेके नीचे तक जो एक साल के तमाम पीपल हैं उनको आप ऐड कर लो तो 8000 लोग आपके डाउनलाइन में आते हैं। 4000 लोग लेफ्ट पे, 4000 लोग राइट पे। 8000 लोगों को आपकी वजह से रोजगार मिला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 8000 लोगों की दुआएं आपको मिली। इसी तरह अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 8000 कस्टमर्स भी आपने कंपनी को दे दिए, और इन 8000 कस्टमर्स के लिए कंपनी को कोई बैनर नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई बिलबोर्ड नहीं लगाना पड़ा, कंपनी को कोई टीवी पे ऐड नहीं चलाना पड़ा, कंपनी को कोई शोरूम नहीं खोलना पड़े, कोई दुकानें नहीं खोलना पड़ी। ये सारे काम आप लोगों ने किए, क्योंकि आप लोग चलते फिरते शोरूम है कंपनी का, आप लोग चलते फिरते बैनर है, आप लोग चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है, इसीलिए कंपनी आपको पे कर रही होती है। हर शख्स सिर्फ 2 की बात करे तो एक साल में जो मिनिमम इनकम आपकी होती है दैट इज $40,000, 30 लाख रुपीस बनते हैं। मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए तो बहुत थे, लोगों के लिए शायद थोड़े कम हो। इस सारे प्रोसेस में कंपनी बहुत कमा रही होती है और हम भी कमा रहे होते हैं। और बिजनेस नाम ही गिव एंड टेक का होता है, कहीं भी टेक एंड टेक नहीं होता एंड कहीं भी गिव एंड गिव नहीं होता। $40,000 अगर आपने कमाए हैं तो तकरीबन $20,000 इन्होंने, $10,000 इन्होंने, $5,000 इन्होंने। जब सब कमा रहे हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, तो कितने लोग होंगे जो एक साल के बाद काम छोड़ना चाहेंगे और कितने लोग होंगे जो काम करना चाहेंगे? पाकिस्तान के हालात देखते हुए बताइएगा। कोई भी नहीं छोड़ेगा, सही कह रहे हैं। आपने कहा 100% लोग काम करेंगे, मैं कह देता हूं 50% लोग काम करेंगे और 50% लोग काम नहीं करेंगे। मैं हर चीज को थोड़ा कम करके दिखा रहा हूं। आपने 100 कहा, मैंने सिर्फ 2 की बात की। आप 100% कह रहे हैं, मैंने 50% की बात की। क्योंकि हर चीज को मैं कम करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कल जब इससे ज्यादा हो तो आप मेरी रिस्पेक्ट करें कि खुर्रम शेख ने एक बात कही थी और उससे ज्यादा ही अच्छा हमारे साथ हो रहा है। बात हो रही थी इस सारे प्रोसेस में कंपनी कहां पे अर्न कर रही होती है या मैक्सिमम हम कितना कमा सकते हैं। आपने कहा कि 50% नहीं 100% लोग काम करेंगे। मैंने कहा कि अगर 50% लोग भी काम करते हैं एक साल के बाद तो 2000 लोग यानी लेफ्ट पे काम कर रहे हैं और 2000 लोग राइट पे काम कर रहे हैं। इन 2000 में से भी 1000 लोग रोजाना एक्टिव हो जाते हैं और सिर्फ एक एंट्री अपने साथ कर देते हैं। तो डेली के 1000 कस्टमर्स लेफ्ट पे आ रहे होंगे, 1000 कस्टमर्स राइट पे आ रहे होंगे ऑटोमेटिकली। एक वक्त था
کہ آپ 3 लेफ्ट 3 राइट कर रहे थे तो कंपनी एक दिन का आपको कितना दे रही थी? $30। फिर आपकी टीम थोड़ी बढ़ गई और अपनी टीम के साथ मिलके आप कंपनी को देने लगे 6 लेफ्ट 6 राइट डेली का, तो आपको रोजाना मिलने लगे $60। फिर एक वक्त आया कि 9 लेफ्ट 9 राइट कस्टमर्स आप डेली बेसिस पे कंपनी को देने लगे, तो डेली बेसिस पे आपको $90 मिलने लगा। एक वक्त आया कि आप 12 लेफ्ट 12 राइट, क्योंकि आपके साथ आपकी टीम भी बढ़ती जा रही है, एक वक्त में एक दिन में आप 12 लेफ्ट 12 राइट कस्टमर्स कंपनी को देने लगे, तो आपको मिलने लगा एक दिन का $120। आज एक साल में वो वक्त आ गया है कि आप ऑटोमेटिकली कंपनी को दे रहे हैं 1000 कस्टमर्स लेफ्ट 1000 कस्टमर्स राइट। आप बता सकते हैं कि एक दिन की इनकम आपकी कितनी बन रही होगी? एक जीरो आगे लगा दें तो आपकी इनकम बन रही है 3 के आगे जीरो तो $30 इनकम, 6 के आगे 60 हो जाता है, तो 1000 लेफ्ट 1000 राइट एंट्रीज एक साल के बाद आ रही होंगी, तो आपका पर डे का कमीशन बन रहा होगा $10,000। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन ली थी, मैंने भी आप ही की तरह तालियां बजाई थी, लेकिन जब मुझे आगे वाला जुमला सुनना पड़ा तो मैंने दोबारा तालियां बजा दी थी, क्योंकि ये $10,000 बन रहे होंगे, इससे ज्यादा ही बन रहे होंगे, लेकिन ये आपको मिलते नहीं है। तालियां बजाइए दोबारा। इसमें से वादे के मुताबिक कंपनी आपको $450 दे रही होती है, बाकी $9,550 इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलता। कंपनी इसमें से ऊपर बांटने के बाद भी एक शख्स से कम से कम भी $5,000 कमा रही होती है। तो कंपनी तो पहले दिन से ही कमा रही है। जो $60 का आप 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ब्रांडेड वॉच कंपनी से खरीदते हैं, माना कि वो मार्केट में $60 का ही है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वर्थ $60 ही है, लेकिन ये कंपनी खुद बनाती है। जब खुद कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो जाहिर सी बात है कि उस पे अर्न कर रही होगी। जो $300, $400, $500, $3,000 वाला प्रोडक्ट आप कंपनी से खरीदते हैं, वो डिजाइनर प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी कंपनी खुद ही बनाती है, तो कंपनी उस पे अर्न करती है। और सबसे ज्यादा $450 के बाद कंपनी कमा रही होती है। एक अकाउंट से हमारी लिमिट है $450 अ डे, इससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते। कहते हैं कि हर बात की एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है, और जिस चीज की हद ना हो तो फिर वो चीज अच्छी नहीं होती है। तो एक अकाउंट से $450 अ डे हमारी लिमिट है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट, और मैं ये समझता हूँ कि $450 अ डे 11 लाख रुपए महीना हम लोगों के लिए बहुत है। मैं अर्न करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खर्च करता रहता हूँ तो खत्म नहीं होते। गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अब क्या बड़ा खर्चा करूँ मैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, और इसका क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो कामरान फहद को, उसके बाद आबिद भाई को। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। वो कामरान भाई थे कि जिन्होंने मुझे मेरी एबिलिटीज का एहसास दिलाया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही थी कि माइकल शूमेकर वर्ल्ड का फास्टेस्ट रेसर है, और वो चलाता है फॉर्मूला 1 का फेरारी, और हमेशा रेस जीतता है। उसकी गाड़ी फेरारी फॉर्मूला 1 गियर की, जब वो चलाता है तो हमेशा रेस जीतता है। अगर उसको आप पाकिस्तानी FX दे दें तो क्या वो रेस जीत जाएगा? रेस जीत जाएगा वो? क्यों? उसमें तो इतनी एबिलिटीज है इतनी अच्छी गाड़ी चलाने की, तो वो क्यों रेस हार गया? क्योंकि उसके पास उसकी गाड़ी नहीं थी, उसका कंपैटिबल कार नहीं था। इसी तरह आप लोगों में भी बहुत एबिलिटीज हैं, लेकिन ये देखें कि जहां आप काम कर रहे हैं क्या वो फॉर्मूला 1 गियर की फेरारी है भी या FX गाड़ी है? तो बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को एबिलिटीज बहुत दी है, लेकिन अगर आप ऐसी गाड़ी में बैठ जाएंगे जिसकी मैक्सिमम स्पीड ही 80 या 100 होगी, तो किस तरह से आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे? किस तरह से आप आगे जिंदगी की किसी भी रेस में जीतेंगे? आपके ध्यान में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये $60 कंपनी को भेजे किस तरह से? बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं। $60 का ड्राफ्ट बनाइए या पे ऑर्डर बनाइए और बैंक के थ्रू कंपनी के अकाउंट में भेज दें।
कंपनी का अकाउंट नंबर वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ड्राफ्ट के $30 बैंक वाले एक्स्ट्रा लेते हैं और 10 से 15 दिन में आपका ड्राफ्ट पहुंच जाता है, आपके पैसे पहुंच जाते हैं, आप साइन अप हो जाते हैं। दूसरा तरीका जो हम लोग सब यहाँ अपनाते हैं बहुत ही सिंपल है। जो दोस्त आपको यहाँ लाए हैं आप उनको 4,860 रुपए दे दें और वो अपने पास से, क्योंकि वो साइन अप है, वो कमा भी रहे होंगे, उन्होंने $60 मान लें अर्न किए हुए हैं या उनके सीनियर ने अर्न किए हुए हैं, उन्होंने ये $60 जो कमाए हैं ई मनी, ये आपके नाम से आपके सामने बैठ के ऑनलाइन कंपनी को बेच दी और आपने $60 अपने दोस्त को दे दी। इस तरह आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने होंगे और सिर्फ 4,860 रुपए में 1 मिनट में आप साइन अप हो जाते हैं और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा कि पैसे किस तरह कैश किए जाएं। पैसे कैश करने के 4 तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका, जब आपके ऑफिस में बढ़ते बढ़ते $500 हो जाए तो आप कंपनी से चेक रिक्वेस्ट करें। चेक आप अपने लोकल बैंक एमसीबी, यूबीएल, नेशनल बैंक में डाल दें, उसको कैश कर दें। उसमें इनकम टैक्स कटता है और ट्रांजैक्शन चार्जेस कटते हैं और कटने भी चाहिए। पाकिस्तान में कमा रहे हैं तो पाकिस्तान की खिदमत जरूरी है। दूसरी बात, जब आपके ऑफिस में बढ़ते बढ़ते $500 हो जाए तो टीटी टेलीग्राफ ट्रांसफरिंग के थ्रू डायरेक्ट आप अपने लोकल बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा लें। एमसीबी में, यूबीएल में, नेशनल बैंक में, जहां भी आपका अकाउंट है वहां डायरेक्ट टेलीग्राफ ट्रांसफर के थ्रू पैसे मंगवा लें। तीसरा तरीका, अभी आपका सिर्फ और सिर्फ पहला कमीशन आया है $30, आपका क्या दिल करेगा कि आप उसको $500 तक जाने दें या फौरन कैश कर लें? कैश कर फौरन कैश कर लें। ऐसा ही होता है, मैंने भी फौरन ही कैश कर लिए थे। $30 अगर आप फौरन कैश करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। जो दोस्त आपको इस बिजनेस में लाए हैं आप उनके घर जाएं, उनके ऑफिस में $30 ट्रांसफर करें ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठ के। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है कंप्यूटर के ऊपर। $30 उनके ऑफिस में आ गए, उन्होंने 2,500 रुपए आपको कैश दे दिए। अगर आपके दोस्त आपके घर में नहीं है तो आप सखी हसन ऑफिस पे आ गए, वहाँ कोई भी सीनियर मौजूद है, सपोज कर ले मैं मौजूद हूँ, आपने मेरे ऑफिस पे कंप्यूटर पर बैठ के $30 ट्रांसफर किए, मेरे पास ये $30 आ गए मेरे ऑफिस में और मैंने आपको 2,500 रुपए कैश दे दिए। ऐसे में मंडे को मेरा भी $30 कमीशन आया हुआ था तो मेरे पास अब कितने जमा हो गए? $60। मुझे भी तो ये $60 कैश करने हैं। बहुत सिंपल है। ऐसे में असमत भाई मेरे पास आ गए कि मुझे साइन अप होना है, तो असमत भाई आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए हाथ में साइन अप होने के लिए? $60, 4,860 रुपए। असमत भाई ने ये मुझे दे दिए और मैंने ये $60 इनकी तरफ से ऑनलाइन कंपनी को भेज दिए। ये साइन अप हो गए और मेरा कमीशन कैश हो गया। बहुत खूबसूरत बिजनेस है। आप इस बिजनेस में किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहे होते, आप इंडिपेंडेंट होते हैं। पूरी दुनिया में जाके आप कहीं भी इस बिजनेस को करें, एंजॉय करें। बस इस बिजनेस में सभी कामयाब हो जाते हैं, एंजॉय करें। बस इस बिजनेस में सभी कामयाब हो जाते हैं और मेरे ड्रीम में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग ही कामयाब हैं और सभी कमा रहे हैं। बस 2 तरह के लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होते। मुझे दुख भी होता है और मैं समझा देता हूँ इस वजह से कि आप उन 2 तरह की कैटेगरी में ना आ जाओ। सब लोग कामयाब होते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, मिलजुल के चलने वाला बिजनेस है और जो काम इत्तेफाक से हो रहा होता है, जिस काम में मुसलमान मिलके काम कर रहे हो, तो वो काम कभी फ्लॉप नहीं होता, वो चलता ही है लास्ट में। लेकिन 2 लोग नाकाम हो जाते हैं इस बिजनेस में। मेरा आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले आप इस बिजनेस में पहले फेलियर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस बिजनेस में किसको एडअप करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है आप कहेंगे अपने दोस्त को, अपने चचा को, अपने मामू को, अपने घर वालों को, ऐसे ही कहेंगे और ऐसा ही आप सोच रहे हैं, जबकि आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने आप को, यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है यू, सबसे पहले आपने इस बिजनेस में अपने आप को एडअप करना है, उसके बाद फिर आगे किसी को बताना है। ये ऐसी ही बात है कि अगर मैं नमाज ना पढ़ूं और आपसे कहूं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, तो आप कहेंगे कि भाई पहले खुद तो पढ़ लो। इसी तरह आपने इस बिजनेस को खुद ज्वाइन किया नहीं और आगे दोस्तों को बताने पहुंच गए, तो आपके दोस्त कहेंगे कि भाई पहले खुद तो ज्वाइन कर लो। और वो सबसे पहले ये सोचेंगे कि आपने खुद तो ज्वाइन किया नहीं है, इसका मतलब है आपका बिलीव ही नहीं है इस बिजनेस में,
تو جب وہ آپ کا بلیف لیول اتنا کم دیکھیں گے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو اس لیے پہلے آپ خود جوائن کریں, ایک اچھا کام ہے, پہلے خود جوائن کریں, اس کے بعد پھر آگے اپنے دوستوں کو بتائیں. جیسے میں نے جوائن کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا فیلئر اس بزنس میں وہ ہے کہ جو باہر نکل کے لوگوں سے مشورے شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جب پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے. آپ کبھی بھی پلمبر سے جا کے مشورہ نہیں لیتے. کوئی ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ جس کے پیٹ میں درد ہوا ہو پلمبر کے پاس پہنچ گیا مشورہ لینے؟ کوئی بھی نہیں. آپ کو ماشاءاللہ معلوم ہے کہ اگر سوئمنگ سیکھنی ہے تو سوئمر سے مشورہ لینا ہے. آپ کبھی ڈاکٹر سے مشورہ لینے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب وہ میں کل سوئمنگ کرنے جا رہا ہوں, ذرا تھوڑی ٹپس دے دیں. وہ کیا ٹپس دیں گے؟ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. وہ پیٹ کے درد میں بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کی فیلڈ ہے. سوئمنگ کے بارے میں پوچھنا ہے تو سوئمر بتا سکتا ہے کیونکہ ان کی فیلڈ ہے. انگلش لینگویج سیکھنی ہے تو کس کے پاس جاؤں؟ ٹیچر, فزکس کے ٹیچر کے پاس. فزکس کے ٹیچر کیا ٹینسز یا ماڈلز بتائے گا کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. تو مشورہ کس سے لینا چاہیے؟ انگلش لینگویج کے ٹیوٹر سے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ پیٹ میں درد ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے کیونکہ اس کی فیلڈ ہے. سوئمنگ سیکھنی ہے تو سوئمر سے مشورہ لینا ہے کیونکہ اس کی فیلڈ ہے. انگلش لینگویج سیکھنی ہے تو انگلش لینگویج کے ٹیوٹر سے مشورہ لینا ہے کیونکہ اس کی فیلڈ ہے. تو پھر یہاں بھی اتنی ہی عقل مندی کا ثبوت دیجیے گا, باہر جا کے اسی سے مشورہ لیجیے گا جو جانتا ہو کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے, جو جانتا ہو کہ جی ایم آئی کی پاور کیا ہے. ورنہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا کے مشورہ لے رہے ہیں, چاہے آپ کا گھر کا ہی کوئی فرد کیوں نہ ہو, کسی ایسے شخص کے پاس جا کے مشورہ لے رہے ہیں کہ جی ایم آئی جوائن کروں یا نہیں کروں, اور وہ خود جوائن نہیں ہے, اس کو کچھ معلوم نہیں ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں, تو وہ وہی مشورہ دے گا جو ایک پیٹ کے درد پہ پلمبر دے گا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے جو دوست جوائن ہیں ان سے مشورہ لیں. کوئی پرابلم ہے تو ان سے پوچھیں, ان سے سیکھیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے کے پاس چلے گئے کہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے, تو آپ کا مذاق بنے گا. کیونکہ پاکستان میں بس ایک سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ آپ جس سے مشورہ لیتے ہیں وہی آپ کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتا ہے, آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. شیکسپیئر کا ایک سینگ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, ایک کامیاب انسان وہی ہے جو انہی پتھروں سے اپنا مقام بناتا ہے جو دوسرے اس کو مارتے ہیں. آج جتنے پتھر لوگوں نے آپ کو مارے ہیں, جتنا آپ کا مذاق اڑایا ہے لوگوں نے, ان کو جواب نہ دیں. ان پتھروں کو جمع کریں, اس سے اپنا مقام بنائیں, اور انہی لوگوں کو جا کے دکھائیے گا کہ یہ وہی پتھر ہے جو تم نے مارے تھے, آج اسی سے میں نے اپنا مقام بنا لیا. یہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کریں تو کامیابی آپ کی طرف چومے گی.